Assalamualaikum friends. Hello everyone. Hope all are well at your end. So, we resumed our recordings with chapter number 1 and chapter number 2. We completed both the chapters of module 1, right? Chapter 1 was somewhat basic introduction about accounting standards, the framework, accounting standards board, how the accounting standards are set up, the process, thereafter global standards, needs for its convergence towards global standards, thereafter IFRS, carve outs, list of AS, list of Ind AS. So somewhere we studied that all in the chapter number 1, right? Then we look towards chapter number 2, framework for preparation and presentation of financial statements, the mother framework, right? Which thereafter in that chapter also we looked forward to the principal areas covered in the framework, and we looked each and every area one by one. Now coming to chapter number 3, overview of accounting standards. Unit 1, applicability of accounting standards. Chapter 3 is divided into two parts, Unit 1 and Unit 2. Unit 1 describes about the applicability of accounting standards. Accounting standards किन entities को applicable है, right? उसकी बात हम इस chapter में करेंगे. We looked it. थोड़ा सा theoretical chapter है, लेकिन हमें देखना होगा, right? Starting with page 3.2. Status of accounting standard. See, it has already been mentioned in chapter 1. Standards are developed by ASB of ICAI and are issued under the authority of its council. Institute, not being the legislative body, can enforce compliance with standards only by its members, right? ICAI कोई legislative body नहीं है, इसलिए वो अपने members को enforce करवा के accounting standards को applicable करवाती हैं. Also, standards cannot override the laws and local regulations. Mark the words. Standards cannot override the law and local regulations. जो भी स्टैच्यू ने प्रोवाइड किया हुआ है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड नहीं कर सकता है. लॉ विल प्रिवेल ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट? Accounting standards are nevertheless mandatory from the date specified of respective standards and generally applicable to all enterprises subject to certain exceptions. तो जिस भी डेट से वो स्पेसिफाई किया जाता है तब से वो मैंडेटरी है, उसको अप्लाई करने को जनरली सभी एंटरप्राइजेस को वो एप्लीकेबल है. हालांकि थोड़े से एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, वो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, राइट? नाउ the implication of mandatory status of an accounting standard depends on whether the statute governing enterprises concerned requires compliance with standard. Example, MCA have notified accounting standards for companies incorporated under Companies Act 2013. MCA ने भी बोला है कि आप सभी कॉर्पोरेट्स के लिए अपने एक्ट में कि you need to follow accounting standards, right? तो वैसे सभी स्टैच्यू ने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है. नाउ इन असेसिंग वेदर एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल वन मस्ट फाइंड करेक्ट आंसर टू फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस. अगर हमें पता चलाना है कि क्या हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है या नहीं, तो व्हाट वी नीड टू से कि हमें ये 3 क्वेश्चंस का जवाब देना है. फर्स्ट, डज इट अप्लाई टू एंटरप्राइज कंसर्न? इफ़ येस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम जो भी एंटरप्राइज है उस एंटरप्राइज को हमें एएस लागू होगा हमारी इंडस्ट्री में, जो हम जो एंटरप्राइज चला रहे हैं उसको. फिर इफ़ येस, डज इट अप्लाई टू फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसर्न? जो हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसको वो अप्लाई होगा. इफ़ येस, देन डज इट अप्लाई टू फिनेंशियल आइटम कंसर्न? हमारे जो फिनेंशियल आइटम है हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या उसको वो एप्लीकेबल है, वो हमें फिर देखना होगा. ठीक है ना. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज 3.3, एंटरप्राइजेस टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई. ठीक है ना. किन किन एंटरप्राइज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होता है वो यहाँ पे देखेंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जनरली सभी एंटरप्राइजेस को अप्लीकेबल है. अगर वो कमर्शियल ऑपरेशंस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल होंगे. आप अगर यहाँ पे से वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, वी विल रीड इट आउट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी
enterprise, whether organized in corporate, cooperative or other forms, चाहे वो कॉरपोरेट हो मतलब कि कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर फॉर्म्स में एग्जांपल है बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, राइट। चाहे किसी भी फॉर्म का बिजनेस एंटिटी हो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। एंगेज्ड इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटीज़, वो एंटरप्राइज, वो रिपोर्टिंग एंटिटी किस में एंगेज होना चाहिए? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी में। वेदर और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, इवन इफ इस्टेब्लिश फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, अगर वो चैरिटेबल पर्पस के लिए भी ट्रस्ट खड़ा किया होगा लेकिन अगर उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है देन यू नीड टू फॉलो एंड अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। Accounting standards, however, do not apply to enterprises solely Accounting standards, however, do not apply to enterprises solely carrying on activities which are not for commercial, industrial और business nature। जो इन सब के अलावा कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं जो कमर्शियल बेसिस पे नहीं है तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। Now, even if very small proportion of activities was considered to be commercial, industrial or business in nature, the accounting standards would apply to all its activities including those which are not commercial, industrial or business in nature। अगर कोई रिपोर्टिंग एंटिटी है उनका थोड़ा सा वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनका थोड़ा सा पोर्शन कमर्शियल नेचर का है या इंडस्ट्रियल नेचर का है या बिजनेस नेचर का है तो फिर उनकी सभी एक्टिविटीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होगा, नहीं कि सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी को या बिजनेस एक्टिविटी को या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, लेकिन सभी वेदर इट में भी कमर्शियल और नॉन कमर्शियल उन सभी एक्टिविटीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, इम्प्लीकेशन ऑफ मैंडेटरी स्टेटस। Where the statute governing the enterprise does not require compliance with the accounting standards, example partnership form, mandatory status of an accounting standard implies that in discharging their attest functions, the members of institute are required to examine whether financial statements are prepared in compliance with applicable accounting standards। अभी पार्टनरशिप एक्ट का उन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी कोई स्टैच्यू में कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए, तभी आईसीएआई ने अपने मेंबर्स को मैंडेट किया है कि आप जो भी एंटिटी का ऑडिट करें, चाहे उनके स्टैच्यू में रिक्वायरमेंट हो या ना हो, कि एएस को फॉलो किया जाए। यू नीड टू सी दैट वेदर द एएस हैव बीन अप्लाइड और नॉट एंड यू नीड टू गिव एन ओपिनियन ऑन इट, ठीक है। उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म का एग्जांपल लिया है कि पार्टनरशिप एक्ट में बोला नहीं गया है लेकिन यू नीड टू सी दैट वेदर द पार्टनरशिप फॉर्म हैव फॉलोड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट, राइट। In the event of any deviation, they have the duty to make adequate disclosures in their reports so that the users of financial statements may be aware of such deviations। और अगर कहीं पे accounting standards को follow नहीं किया गया हुआ है, कोई deviation है, तो उन ऑडिटर को अपने रिपोर्ट्स में रिपोर्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई डेविएशन है एएस से, राइट। इट शुड नेवरथलेस बी नोटेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर मेकिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज दैट ऑफ मैनेजमेंट। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फॉर्म हिज ओपिनियन एंड रिपोर्ट ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, राइट, और उसके डिस्क्लोजर भी दिखाने की जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की। लेकिन ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? उसके ऊपर ओपिनियन देने की और उसमें रिपोर्ट करने की अगर कोई तकलीफ़ हो, मतलब अगर कोई डेविएशंस हो या फिर कोई एरर हो, ठीक है। सेक्शन 129, अभी यही बात जो हमने बोली कि ऑडिटर को देखना चाहिए कि एएस फॉलो किए गए हैं या नहीं, तो वही बात कंपनीज एक्ट ने भी बोला है। पहले तो कंपनीज एक्ट ने मैंडेट करवाया है सभी कंपनीज़ को एएस फॉलो करने के लिए, फिर उन्होंने ऑडिटर को भी मैंडेट करवाया कि दे नीड टू रिपोर्ट एंड गिव देयर ओपिनियन दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सी they have given in section 129 subsection 1 of Companies Act 2013 that requires compliance to present their financial statements
in accordance with the accounting standards notified under section 133 of Companies Act, right? तो पहले उन्होंने मैंडेट करवाया कि आपको AS फॉलो करना होगा। फिर ऑडिटर को क्या मैंडेट करवाया? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज E to report whether in his opinion financial statements of company audited comply with accounting standards referred to in section 133 of the Act. Where financial statements of company do not comply with accounting standards, company should disclose in its financial statements the deviation. ठीक है ना? तो यहाँ पे भी यही बात बोली कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मैंडेट करवाए, फिर ऑडिटर पे जिम्मेदारी डाली कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और कंपनी को भी अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगर उन्होंने कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया हुआ है तो, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, पेज 3.4, या तो जो डेविएशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से और उनके रीजंस, उनके फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी डिस्क्लोजर में देने होंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल नीड टू प्रोवाइड अ डिस्क्लोजर कि हमने ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया हुआ है, क्यों फॉलो नहीं किया हुआ है, उनका रीज़न भी उनको बताना पड़ेगा और जो फिनेंशियल इफेक्ट मतलब कि फिनेंशियल इम्पैक्ट आएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो ना करने की वजह से वो भी उनको दिखाना पड़ेगा अपने नोट्स टू फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, वो भी स्टैच्यू में मैंडेट किया हुआ है इन सेक्शन 129 सबसेक्शन 5। नाउ प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द financial statements should not be treated as not disclosing a true and fair view of state of affairs of company merely by reason in the fact that they do not disclose। अभी financial statements को हम ऐसे नहीं मान सकते कि वो true and fair view नहीं दिखा रहे हैं अगर सिर्फ उन्हीं कारणों से जो नीचे दिए हुए हैं। वो कारण कौन से हैं हम पढ़ते हैं। इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एनी मैटर्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द इंश्योरेंस एक्ट और रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर इंश्योरेंस एक्ट में नहीं बोला है डिस्क्लोजर बताने का कोई भी मैटर पे तो यू कैन नॉट से कि इंश्योरेंस कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रहा है। सेम फॉर बैंकिंग कंपनी, अगर बैंकिंग एक्ट में कुछ ऐसा नहीं बोला है डिस्क्लोज करने का तो वो लोग नहीं करेंगे। सो दैट डज नॉट मीन कि इट डज नॉट डिस्क्लोज द ट्रू एंड फेयर व्यू। सेम विथ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये सभी कंपनीज ऐसे है कि उनके खुद के स्टैच्यूज़ है, वो उनके स्टैच्यू रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना डिस्क्लोजर बताएंगे। तो उसके यू कैन नॉट से कि उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है एंड दे आर नॉट देयर फिनेंशियल्स आर नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। वैसे और भी कोई अदर लॉ है उसके हिसाब से कोई भी एंटिटी है तो उसको भी लिए भी सेम बात बताई गई है। ठीक है, नाउ ये तो नफ़रा की बात की हुई है, वो हम आगे करते हैं। ठीक है, फिनेंशियल नेक्स्ट फिनेंशियल आइटम्स टू विच द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई। अभी कौन से फिनेंशियल आइटम्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इंटेंडेड टू अप्लाई ओनली टू द आइटम्स विच आर मटेरियल। हमने ये लास्ट लेक्चर जो हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हमारे रिकॉर्डिंग्स थे उसमें मैंने बात समझाई थी आपको, अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उन्हीं को एप्लीकेबल होंगे जो आइटम मटेरियल है। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम सभी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं, वही इंफॉर्मेशन बता सकते हैं जो रेलेवेंट है। रेलेवेंट है किस हिसाब से रेलेवेंट है कि यूज़र्स के इकोनॉमिक डिसीजन पे इम्पैक्ट आ सकता है, दे आर मटीरियली रेलेवेंट। तो ये था मटेरियल, राइट। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्हीं आइटम्स को अप्लीकेबल हो गए जो मटेरियल है। अभी आइटम को मटेरियल बोलना किस तरह से हम बता सकते हैं, मैंने आपको उस वक्त भी समझाया था। एन आइटम इज़ कंसिडर्ड मटेरियल इफ़ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट इज़ लाइकली टू अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूज़र। अगर वो आइटम हम ना डिस्क्लोज करें अपने फिनेंशियल्स में या फिर उसमें कोई गलती कर दे तो जो यूज़र का इकोनॉमिक डिसीजन है वो चेंज हो सकता है, उस पर असर आ सकती है, तो वो आइटम को हम मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, मटेरियलिटी इज़ नॉट नेसेसरीली अ फंक्शन ऑफ साइज और इंफॉर्मेशन कंटेंट। वो ऐसे नहीं बोलेंगे ठीक है करोड़ में है तो मटेरियल है, लैक्स में है तो मटेरियल नहीं है, दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट।
या फिर कंटेंट के हिसाब से भी उसको मटेरियलिटी हम नहीं बोल सकते हैं। फिर उन्होंने उनका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल छोटा सा दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने ये बहुत डिटेल में चैप्टर 2 में बताया था, आपको समझाया था, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। द मटेरियलिटी शुड देयरफॉर बी जज्ड ऑन केस बेसिस। मैंने तब भी आपको समझाया था कि आपको मटेरियलिटी केस टू केस बेसिस पे डिपेंड जज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से दैट मटेरियलिटी लेवल विल बी सेम फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर और फ्रॉम वन इवेंट टू मतलब वन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टू अनदर, राइट। If any item is material, it should be shown separately instead of clubbing it with other items. अगर वो item material है, you cannot club it with any other items. अगर immaterial items है, miscellaneous expenditure है, 10-20 रुपये का चिल्ला चालू मतलब हमारा खर्चा हुआ है, तो we can club them because they are not material to the reporting entity. उनका capital, उनका profit, उनका turnover के हिसाब से वो material नहीं, तो वैसे expenses आप club करके दिखा सकते हैं। लेकिन कोई अगर major expense हुआ है जो अगर जिसका आप कहीं पे क्लब जो अगर ना दिखाया या उसमें कोई गलती हो, उससे यूज़र का डिसीजन में इम्पैक्ट आ सकता है, तो वैसे एक्सपेंस को यू नीड टू शो इट सेपरेटली बिकॉज वो मटेरियल हुआ, यू कैन नॉट क्लब इट विथ एनी अदर, तो वो ध्यान में नहीं आएगा। इफ़ मटेरियल आइटम्स को हमें सेपरेटली दिखाना है ताकि वो ध्यान में आए यूज़र्स के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू क्लब पेनल्टीज पेड विथ लीगल चार्जेस। पेनल्टीज पे की हुई है, हमें उसको क्लब नहीं करना चाहिए, राइट। अभी मूविंग टू नेक्स्ट पेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इनकम टैक्स एक्ट, राइट। अभी यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनकम टैक्स एक्ट की बात की गई हुई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटेंड टू रिड्यूस डाइवर्सिटी इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ASQ बनाए गए हैं ताकि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर एक एंटिटी फॉलो करेगी वो सभी अलग अलग करने जाती है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन होगा, उसको एलिमिनेट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, स्टैंडर्डाइजेशन आए और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो, अंडरस्टेबल हो, राइट। फिर दे इम्प्रूव कंपेरेबिलिटी एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, ठीक है ना। नाउ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अलाउड इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑन अदर हैंड इज़ अ मैटर ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इनकम टैक्स एक्ट में जो भी डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिलीफ्स बताए गए हैं कंप्यूटेशन के लिए, वो सब तो गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से है, ठीक है ना। तो दे हैव नथिंग टू डू विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Thus an expense required to be charged against revenue by an accounting standard does not imply that the same is always deductible for income tax purpose. अगर कोई एक्सपेंस को हमें चार्ज करना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इट इज़ ऑलवेज डिडक्टिबल फॉर इनकम टैक्स ऑल्सो। इनकम टैक्स हैज देयर ओन प्रोविजंस, ठीक है। फिर सेम फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स टेकन ऑन फिनेंस लीज इज चार्ज इन बुक्स ऑफ लेसी एज पर AS 19, बट डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू लेसर बीइंग लीगल ओनर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे उन्होंने डेप्रिसिएशन की बात की गई है। अगर हम फिनेंशियल लीज, आपको ये सब AS 19 में डिटेल में पता चलेगा, जब हमारा लीज फिनेंशियल लीज है तो फिर लेसी अकाउंटिंग्स के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लेसी के बुक्स में वो एसेट रिकॉर्ड करेंगे और लेसी ही डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा पाएगा। लेकिन जब हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो इनकम टैक्स ऐसा बोलता है कि डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू द ओनर हु इज़ द लीगल ओनर ऑफ दैट एसेट। तो यहाँ पे लीगल ओनर कौन है? लेसर, नॉट लेसी। तो फिर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट कहाँ किसको मिलेगा? लेसर को, ठीक है। तो ये सब थोड़े से डाइवर्सिफिकेशन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम करेंगे और इनकम टैक्स एक्ट की जब बात आएगी, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम की बात आएगी, तब हम इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, इनकम कॉम्प्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ICDS। अगर आपने सुना हो तो ये बहुत मतलब ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा है जो इनकम टैक्स एक्ट ने बताए गए हुए हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली एट पार विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दे हैव देयर डिफरेंसेस। ये अभी इनकम टैक्स एक्ट में इशू किए गए थे थोड़े मतलब 1-2 साल पहले, AY 17-18 से उसको नोटिफाई किए गए थे, राइट। यहाँ पे बोला है कि सेक्शन 145 यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 145 सब सेक्शन 2 एम्पावर्ड। ये सेक्शन किसका है? इनकम टैक्स एक्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है 145, जहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर दे रहा है, अथॉरिटी दे रहा है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करने को ICDS को।
शॉर्टली इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को ICDS बोलते हैं, तो ज़्यादातर मैं वही वर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, राइट। नाउ income competition and disclosure standards to be followed by any class of SSE in respect of any class of income. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे टाइम टू टाइम ICDS फॉर एनी SSEs और फॉर एनी काइंड ऑफ इनकम. Now accordingly central government has exercised its power conferred under 145 subsection 2 notified 10 ICDS to be followed by all SSEs other than individual और HUF. ये जो ICDS फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए गए और उन्होंने नोटिफाई किए. कितने ICDS अभी तक आए हैं? 10 ICDS आ चुके हैं. और वो किन को एप्लीकेबल है? सभी SSE को अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF who is not required to get his accounts audited in the previous year. सेक्शन 44AB के हिसाब से जो भी इंडिविजुअल HUF को ऑडिट नहीं करवाना है उनके अलावा सभी SSEs को ये ICDS एप्लीकेबल होगी. ऑल्सो वो किन को एप्लीकेबल होगा? जो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं. ऑल्सो ये कौन सी इनकम को एप्लीकेबल होगा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, राइट. ये सब टेक्निकल PGBP क्या है, IFOS मतलब कि अदर सोर्सेज का इनकम क्या है, वो सब आप इनकम टैक्स एक्ट में रिस्पेक्टिवली पढ़ेंगे, राइट. तो ये जो टैक्सेबिलिटी के हेड में PGBP और IFOS का जो हेड है उस इनकम को ही सिर्फ ICDS एप्लीकेबल होंगे, ना कि अदर हेड्स जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस, उनको ICDS एप्लीकेबल नहीं होंगे. अभी आगे बढ़ते हैं. कौन से 10 ICDS उन्होंने नोटिफाई किए हुए, तो उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, सेकंड इन्वेंट्रीज, थर्ड कंस्ट्रक्शन. हमारे में भी ऐसा ही है. देखो अगर आप बात करें अकाउंटिंग पॉलिसीज़ तो हमारा AS1 है, इन्वेंट्री हमारा AS2 है, कंस्ट्रक्शन हमारा AS7 है, रेवेन्यू रिकग्निशन हमारा AS9 है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स हमारा AS10 है, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा AS11 है, गवर्नमेंट ग्रांट्स हमारा AS12 है, एंड सिक्योरिटीज़, राइट. अभी बढ़ते हैं आगे. बोरोइंग कॉस्ट तो ये हमारा AS16 है. प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ एंड कंटीजेंट्स एसेट्स तो ये है हमारा AS29. ये मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एस बताई. ये सभी ICDS इशू किए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, right, and they were notified and made applicable from AY 17-18. Now we will talk about the main point, applicability of accounting standard. कौन सी एंटिटी को कौन से AS with how much relaxation applicable हैं. अभी ICI ने एक क्राइटेरिया अनाउंस किया था क्लासिफिकेशन के लिए, जहां उन्होंने तीन कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किया था, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 एंटिटीज़. जहां पे उन्होंने बताया था कि जो लेवल 2 एंड लेवल 3 है वो एंटिटीज़ को स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज़ बोला जाएगा, राइट. वही बात उन्होंने फर्स्ट पैरा में की है. अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तब उन्होंने क्राइटेरिया कुछ अलग बोला. उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 लेवल्स, नेमली स्मॉल एंड मीडियम साइज एज डिफाइंड इन कंपनीज एंड कंपनीज अदर देन स्मॉल एंड मीडियम कॉर्पोरेट साइज कंपनीज. तो जब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया तो उन्होंने सिर्फ 2 ही बोले, SMCs एंड नॉन SMCs, यानी कि कंपनीज, ठीक है. नॉन SMCs को सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल थे, बाकी SMCs को एग्जेम्पशंस और रिलैक्शंस दिए गए थे. अभी ऐसा डिफरेंस पैदा हुआ, ICI ने कुछ और क्राइटेरिया बोला, गवर्नमेंट ने कुछ और क्राइटेरिया बोला, तो फिर उसके हिसाब से ICI ने अपने क्राइटेरिया को रिवाइज़ किया था, ठीक है. और फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि वो सभी लोग ICI के क्राइटेरिया के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे, और उस हिसाब से नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए 3 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किया गया था. उसके हिसाब से लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. जो लेवल 2 एंड लेवल 3 उसको बोला जाता था स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटिटीज़, ठीक है ना. तो अभी इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं. अभी पहले हमने ये जो प्रीवियस पेज देखा उसमें आपने यहाँ पे नीचे एक नोट दिया हुआ है, वो पढ़ते हैं.
द कंपनीज एक्ट 1956 इज रिप्लेस बाय 2013। आपको पता ही होगा कि अभी कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है और उसको फेज़ बाय फेज़ इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया था। अभी जो सेक्शन 133 है वो कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट आर अप्लीकेबल फॉर द कंपनीज, राइट। और वो कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ नफ्रा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हमने इसकी भी बात की थी चैप्टर नंबर 1 में, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। मैंने तब बोला था कि जो नफ्रा है वो अभी अभी कंपनीज एक्ट 2013 में सेटअप किया गया हुआ है, वो सेक्शन 132 से सेटअप किया गया था। सी सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नफ्रा। However, MCA has wide clarification dated 13th September announced that existing accounting standards notified shall continue to apply। फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन लाया कि अभी जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, राइट। तो ये एक नोट थी जो इम्पोर्टेंट थी, हमने पढ़ ली। अभी हम क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन में डिटेल में जाएंगे। सी यहाँ पे क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने आपको बोला कि नॉन कॉर्पोरेट के लिए 3 एंटिटीज़ में क्लासीफाई किया गया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। कॉर्पोरेट्स के लिए क्या है, दोनों की अलग बातचीत करे जाएंगे। इस लेक्चर में मैं सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के क्राइटेरिया और उनके क्लासिफिकेशन और उनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है जो, नहीं एप्लीकेबल है जो, और जो एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं कहीं पैराग्राफ्स में, कहीं एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया में, तो हम उनकी बात करेंगे। मैं आज के लेक्चर में फिर से बोल रही हूँ सिर्फ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की बात करूँगी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू द कॉर्पोरेट एंटिटीज़, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, राइट। नाउ अभी बढ़ते हैं आगे। क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ एज डिसाइडेड बाय ICAI। पहले बात करेंगे लेवल 1 एंटिटीज़। तो लेवल 1 एंटिटीज़ में कौन सी एंटिटीज़ आएगी? सभी कंपनीज आएगी जो लिस्टेड है या फिर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, वो सभी कंपनीज लेवल 1 एंटिटी बोली जाएंगे। फिर दूसरी लेवल 1 एंटिटी, तो लेवल 1 में कौन सी एंटिटी आएगी? सभी एंटिटीज़ जिनके सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं या फिर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, राइट। फिर नेक्स्ट बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनी एंटिटी कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, तो ये सभी लेवल 1 में कवर होंगे। फिर थर्ड, all commercial, industrial and business reporting entities whose turnover excluding other income, जो बिजनेस का मेन टर्नओवर है, रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ must exceeding rupees 50 crore will be covered in level 1 in the immediately preceding accounting year. All commercial, industrial and business reporting entities having borrowings including public deposits in excess of rupees 10 crore at any time during immediately preceding accounting year and holding and subsidiary of above entities. तो 5 एंटिटीज़ की लेवल 1, 5 एंटिटीज़ को लेवल 1 में कवर किया गया हुआ है। फर्स्ट, हुज सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड और आर इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मार्क दिस वर्ड्स, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, राइट। Thereafter banks, financial institutions and insurance. Thereafter all commercial, industrial and business reporting entities जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर जिनके बोरोइंग्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स मिला के सभी 10 करोड़ को एक्सीड कर जाते हैं, और होल्डिंग एंड सब्सिडियरी ऑफ ईच एंड एवरी अबाव, ठीक है। तो ये हुआ लेवल 1। अभी बढ़ते हैं आगे लेवल 2 एंटिटीज़ या non-corporate entities which are not level 1 but follow in following categories will be said to be level 2. See, what are the categories for level 2? All commercial, industrial and business reporting entities whose turnover exceeds 1 crore but does not exceed 50 crore. अभी ऊपर level 1 में हमने क्या बात की कि टर्नओवर जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे लेवल 2 में हम क्या बात करेंगे? टर्नओवर जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 50 करोड़ से कम है, ठीक है ना।
1 करोड़ या उससे ज़्यादा है और 50 करोड़ से कम है। ठीक है। फिर वैसे ही बोरिंग और डिपॉजिट की बात की, उसमें 10 करोड़ की लिमिट थी लेवल 1 के लिए कि वो 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। जब भी हम लेवल 2 की बात करेंगे तब होगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम होना चाहिए, राइट। देखिए, बोरोइंग्स मोर देन 1 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़। फिर देर आफ्टर होल्डिंग एंड सब्सिडियरी ऑफ अबाउ, तो लेवल 2 तो बहुत छोटा था, सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया थे, राइट, टर्नओवर वाला और बोरोइंग्स वाला। आई होप आपको समझ में आ रहा है और लर्न भी होता जा रहा है। फिर देर आफ्टर लेवल 3 एंटिटीज़, वो सभी वही है जो लेवल 1 और लेवल 2 में नहीं कवर किए गए हैं। तो ये हुआ तीनों एंटिटीज़ का क्लासिफिकेशन। कौन सी? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का 3 क्लासिफिकेशन। ठीक है। अभी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ते हैं आगे। An SME which does not disclose certain information pursuant to exemptions or elections given to it should disclose the fact that it is an SME and has complied to accounting standards insofar as they are applicable to entities following level 1 or level 2 और level 3। अभी यहाँ पे जो level 2 और level 3 एंटिटीज़ दी गई थी हमने, जो ऊपर क्लासीफाई की, उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि कई सारे कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनका एप्लीकेबल नहीं है, या फिर कहीं जहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है तो उनके कई पैराग्राफ्स उनको एप्लीकेबल नहीं है, थोड़े से रिलैक्सेशन उनको दिया हुआ है, थोड़ा एग्जम्पशन उनको दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से उनको कहीं डिस्क्लोजर्स नहीं देने होते हैं। तो अगर यूज़र्स में कन्फ्यूजन्स ना आए, यूज़र्स में कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना जाए, उस वजह से हमें डिस्क्लोजर देना हो चाहिए। जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है वो लेवल 2 या लेवल 3 में कवर हो रही है और इस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि वो एसएमई में एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस का बेनिफिट उठा रही है, तो दे नीड टू गिव डिस्क्लोजर कि वो एसएमई है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से वो ये एग्जम्पशन है, उनको ये बातें ना डिस्क्लोज करने का। ठीक है। फिर देर आफ्टर ये जो सेकेंड पॉइंट है आप पूरा पढ़े, उसमें ये बात बोली गई है कि जब लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज़ है, तो जब पहले वो लेवल 2 में कवर्ड थी, अभी वो लेवल 3 में आ गई। ठीक है। पहले वो एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस के लिए क्वालिफाइड थी, अब लेवल 3 से लेवल 2 में आ गए। बीइंग कवर्ड इन लेवल 2 और लेवल 3 हैड क्वालिफाइड फॉर एनी एग्जम्पशन। लेवल 2 और लेवल 3 में एग्जम्पशंस बताए गए थे तो वो उसमें कवर्ड थी और उसको एग्जम्पशन का बेनिफिट था। अभी वो नो लॉन्गर क्वालिफाइज फॉर दैट एग्जम्पशंस, अभी वो उस एग्जम्पशंस का बेनिफिट नहीं उठा सकती इन दिस करंट अकाउंटिंग पीरियड। उसका जो लिमिट है टर्नओवर या बोरोइंग्स, वो अमाउंट चेंज हो गया, उसकी वजह से उसका क्लासिफिकेशन बदल गया। तो फिर क्या होगा कि क्या अभी इस साल उनको क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने ऐसा बोला कि फिगर्स फॉर द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स बिकम अप्लीकेबल फॉर करंट पीरियड। इस पीरियड के लिए उनको सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनके रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे एग्जम्पशंस को हटा के। ठीक है। और उसके लिए आपको करस्पॉन्डिंग पीरियड जो प्रीवियस पीरियड था उनके फिगर्स को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आप सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज कर दो कि इस साल हम इस एग्जम्पशन से हट चुके हैं और हमने सभी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोज की हुई है हमारे फिनेंशियल्स में। ठीक है ना। तो ये बात क्या हुई कि लेवल 2 और लेवल 3 में आप कवर्ड थी, आपके पास एग्जम्पशन था और अभी वो निकल चुका है। लेवल 2 और लेवल 3 से आप निकल के लेवल 1 में आ गए हो ताकि एग्जम्पशन सभी आपको निकल चुके हैं, राइट। फिर उसके लिए आपको प्रीवियस पीरियड का फिगर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा बोला है कि पहले आप लेवल 1 में कवर्ड थे मानो, फिर इस साल लास्ट साल तक आप लेवल 1 में कवर्ड थे, अभी इस साल आपका लेवल 1 सीज हो चुका एंड आप लेवल 2 या लेवल 3 में कवर हो गए, तो क्या आप एग्जम्पशंस का बेनिफिट उठा सकते हैं इस साल से? नहीं।
आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स मतलब कि लास्ट ईयर तक आप लेवल 1 थे, मतलब कि इस साल और आते साल 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आपको राह देखनी होगी। आपको लेवल 1 के हिसाब से पूरे अपने फिनेंशियल्स को प्रिपेयर करना होगा। आपको कोई भी एग्जेम्पशंस या रिलैक्सेशंस का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। हाँ, अगर आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक कंटिन्यूसली लेवल 1 से हट चुके हैं, लेवल 2 या 3 में कवर हो चुके हैं, and that is continued after 2 years also, then and only then you can take the benefit of exemptions and relaxations given under level 2 and level 3, right? Then if an entity, ये जो 2 consecutive years है वो थोड़ा सा याद रखना, काम की चीज़ है, वो याद रख लेना। Now फिर उन्होंने क्या बात की कि अगर कोई लेवल 2 या लेवल 3 का एंटिटी है जो लेवल 2 और लेवल 3 में क्लासीफाई किया हुआ है, लेकिन उन्होंने ऐसा ऑप्ट किया कि हमें एग्जेम्पशंस का अवेल नहीं करना है, हमें सभी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिस्क्लोज़ करनी है, तो उनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपनी नोट्स में कि हमने स्टैंडर्ड्स में जो एग्जम्पशन दिया हुआ है उनको फॉलो नहीं किया है, हमने सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की है, राइट। Moving to next page, if an entity covered in level 2 or level 3 desires to disclose information not required to disclose, तो वो लोग सभी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आई एम सॉरी, लेट मी रीड अगेन। If an entity covered in level 2 or level 3 opts not to avail the exemptions in or relaxations available to that level in respect of any but not all, it should disclose the standards in respect of which it had availed exemption or relaxation. सी यहाँ पे ऐसी बात की कि सभी एग्जेम्पशंस रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं, लेकिन आपने सिर्फ कई एग्जेम्पशंस और सिर्फ बहुत कम एग्जेम्पशंस रिलैक्सेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते, बाकी सभी एग्जेम्पशन रिलैक्सेशंस को फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने कौन से एग्जेम्पशंस को अवेल किए हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने ऐसी बात की कि अगर आप सभी इन्फॉर्मेशन मतलब सभी एग्जेम्पशंस को नहीं फॉलो करना चाहते, सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तभी आपको बताना पड़ेगा कि हमने रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पूरा कंप्लायंस किया हुआ है, राइट। मूविंग नेक्स्ट, जो भी लेवल 2 और लेवल 3 में है और उन्होंने ऑप्ट किया है कि वो लोग एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशंस का बेनिफिट उठाएंगे, तो दे विल provided that such a partial exemption or relaxation and disclosure should not be permitted to mislead any person or public. Partial exemption आप उठा सकते हैं, लेकिन उससे पब्लिक मिसलीड नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छे से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तभी वो अलाउड है, ठीक है। फिर उन्होंने AS 15 के बारे में थोड़ी बातचीत की हुई है, लेकिन ये आपको अभी काम का नहीं है, वैसे भी AS 15 आपके सिलेबस में यहाँ पे कवर्ड भी नहीं है, आपको समझ में भी ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती को, उन्होंने ऐसा बोला है कि AS 15 में जो रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं लेवल 2 और लेवल 3 में, उसको 2 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है। वन ऐसा कि अगर आपका एवरेज एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर 50 से ज़्यादा है, और दूसरा वो कि आपका एवरेज एम्प्लॉयज़ 50 से कम है, ठीक है। ये हुआ हमारा नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ का क्लासिफिकेशन। हमने देखा नॉन कॉरपोरेट को 3 लेवल्स में कैटेगराइज किया हुआ है, और 3 लेवल्स का क्लासिफिकेशन में देखा कि लेवल 1 में कौन आएगा, लेवल 2 में कौन, लेवल 3 में कौन, और फिर हमने जो एडिशनल पॉइंट्स थे वो भी कवर अप कर लिए। आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है, चलो हम देख लेते हैं। सी कम हियर, Mrs. Omega and Company, a partnership firm, had a turnover of 1.25 crores rupees, excluding other income and borrowings of rupees 0.95 crores in previous year. See, turnover तो 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन बोरोइंग्स है वो 1 करोड़ से कम है, तो हमने एक लिमिट हम एक्सीड कर चुके हैं, तो इस वजह से हमारे AS हमें एप्लीकेबल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट एग्जेम्पशंस, और हम आ जाएंगे लेवल 2 में। सी एडवाइज मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड विद द प्रोविजंस ऑफ AS। हमने पहले यहाँ पे ये बात बोली कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 3 चीज़ें हैं,
फिर उन्होंने बात बोली कि एंटिटी के टर्नओवर का लिमिट देखा जाएगा। जब लेवल 1 की बात करें तो 50 करोड़ हैं, तो वो तो यहाँ पे आएगा नहीं। फिर जब हम लेवल 2 की बात करें तो टर्नओवर है 10 करोड़ से 1 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम, तो हम यहाँ पे फॉल हो जाएंगे। हमारा टर्नओवर का लिमिट एक्सीड हो जा रहा है, इसलिए हम लेवल 2 में कवर हो जाएंगे। सी यहाँ पे उन्होंने लिख दिया हुआ है और उसके हिसाब से ये एस हमको फॉलो करने पड़ेगा और ये यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ये उन्होंने आंसर दे दिया। अभी जो कहाँ पे रिलैक्सेशन है वो सब हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कवर अप नहीं कर रही हूँ, राइट। अभी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, ये हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बात करेंगे इसकी, ठीक है ना। अभी मैं थोड़े से आगे पेजेस पे मूव अप कर जाती हूँ क्योंकि बीच में सभी कंपनीज़ की बातचीत की हुई है। आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे आ जाए 3.15 पे, जहाँ पे उन्होंने बोला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को कौन से एएस अप्लीकेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंटायरली पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, हम उसकी बात करेंगे कि पूरा का पूरा ये जो एएस की लिस्ट दिया गया है वो पूरा का पूरा एप्लीकेबल होगा इन सभी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 को। वो सब कौन से हैं, एएस 1, 2, 1 तो अकाउंटिंग पॉलिसी का, 2 इन्वेंट्रीज, 4 इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, 5 नेट प्रॉफिट और लॉस प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 11 effects of changes in foreign exchange rates, 12 accounting for government grants, 13 investments, 14 amalgamation, 16 borrowing cost। ये सभी एएस टोटली फुल एएस एप्लीकेबल हो गए सभी लेवल्स को, राइट। फिर रिवाइज एएस 10 पीपीई, जो एएस 10 था पहले अलग था, अभी वो रिवाइज होकर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन चुका है, वो सभी कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स को अप्लीकेबल है। और एएस 6 अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन था, वो विड्रॉ किया गया हुआ है एमसीए के द्वारा और अभी वो किसी को भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एक्चुअली एएस 6 मर्ज किया गया हुआ है एएस 10 के साथ, राइट। डेप्रिसिएशन की बात अभी एएस 10 में ही बोली गई है। मूविंग नेक्स्ट, एएस 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, वो भी एंटायरली एप्लीकेबल है तीनों लेवल्स को। और एएस 26 इंटेंजिबल एसेट्स भी सभी को एंटायरली एप्लीकेबल है। फॉरवर्ड, एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशंस टू नॉन कॉर्पोरेट्स इन लेवल 2 एंड लेवल 3। अभी लेवल 2 और लेवल 3 को कौन से एग्जेम्पशंस दिए गए हुए हैं। पहले उन्होंने कौन सी बात की, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पूरे के पूरे एप्लीकेबल ही नहीं है। कौन से, एएस 3 कैश फ्लो, एएस 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, वो लेवल 2 एंड लेवल 3 को एप्लीकेबल ही नहीं होगी। फिर उन्होंने बात की कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉट एप्लीकेबल टू लेवल 3। ये जो एएस 3 एंड एएस 17 दोनों लेवल 2 एंड लेवल 3 दोनों को एप्लीकेबल नहीं थे, राइट। अभी ये जो नीचे बोला गया है, ये जो लिस्ट है 3 और 17 तो यहाँ पे कवर हो गए, जो लेवल 3 को एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा एडिशनल 2, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एंड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये लेवल 3 को एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन लेवल 2 को एप्लीकेबल होंगे, मार्क माय वर्ड्स। फिर नेक्स्ट, accounting standards not applicable since relevant regulators require compliance with level 1 entities। अभी level 1 में जो उनके खुद के स्टैच्यू है उनको उनके हिसाब से उनको compliance करने का है, तो ये एएस है जो level 1 का अप्लाई नहीं होंगे, वो है एएस 21 कंसोलिडेशन, 23 एसोसिएट एंड 27 जॉइंट वेंचर। ये level 1 को अप्लाई नहीं होंगे जहाँ पे उनका खुद का स्टैच्यू कोई compliance की बात करता है। अभी उन्होंने बताया गया है कि लेवल 2 एंड लेवल 3 को कौन से रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे उन्होंने एएस 15 की बात की। मैंने आपको पहले ही बोला कि एएस 15 में जो एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस दिए गए हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले जो जिनके वहाँ एम्प्लॉयज़ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 50 से ज़्यादा है और जिनके वहाँ नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 50 से कम है।
अभी उन्होंने उनके रेलेवेंट पैराग्राफ्स की बात की है कि कौन से पैराग्राफ उनको एप्लीकेबल नहीं होंगे। इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे लेस देन 50 वालों की बात की है, उनका भी हमें देखने का अभी ज़रूरत नहीं है। फिर AS 19 के कौन से पैराग्राफ अप्लीकेबल नहीं है, AS 19 लीजेज है, उनकी बात की है। AS 20 EPS, ये मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ बिकॉज इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर AS 28 इम्पेयरमेंट में कौन से पैराग्राफ एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड दर आफ्टर AS 29 प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, उनका कौन सा पैराग्राफ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। फिर AS 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो किन को एप्लीकेबल होगा, वो डज नॉट रिक्वायर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी टू प्रेजेंट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। AS 25 बोलता है कि नॉन कॉर्पोरेट्स को IFR मतलब कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। Therefore they are applicable to those level 1 non corporate entities only, right? यहाँ पे उन्होंने बात की है कि हमारे AS में सिर्फ इतने ही AS कवर्ड है हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में। कौन से, AS 1, फिर AS 2, AS 3, AS 10, 11, 12, 13 एंड 16, सिर्फ इतने ही AS कवर्ड है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा पूरा नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की बातचीत ख़त्म होती है। पूरा एप्लीकेबिलिटी का क्राइटेरिया हमने देख लिया। अभी मैं यहाँ पे आपको ये बोर्ड बता रही हूँ, आप उसको कॉपी करेंगे सभी। ये बोर्ड में इतना